So, good evening, students. Today I am going to start a new chapter, that is integrals. Okay, already I have discussed about differentiation. This is also one of the important topic of calculus. ये calculus का एक part है, ठीक है? Calculus is divided into two part, integral calculus and differentiation calculus. तो integral calculus आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जो ऑलरेडी तुम लोगों को क्लास 11 में फिजिक्स में मिला था, जस्ट बेसिक इंटीग्रेशन. ठीक है, थोड़ा सा आइडिया है तुम लोगों को. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट टेल इंटीग्रल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स. इंटीग्रल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज वन इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनदर वन इज डेफिनिट इंटीग्रेशन. ठीक है, तो पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा. इफ यू नो what is indefinite integration, then automatic you can able to solve definite integration also. ठीक है, so पहले इंटीग्रल का मीनिंग क्या है वो मैं डिस्कस करता हूँ. ओके, ठीक से ये पार्ट पढ़ना, बिकॉज कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है और वेटेज भी ज़्यादा रहता है. ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रल. सपोज f of x. See, there are two functions. One is capital letter f of x, another one is small letter f of x. Suppose f of x and f of x be two functions connected together such that, कैसे connect हुआ देखो, such that ddx of f of x is equal to small letter f of x. मतलब ये दो फंक्शन को कैसे कनेक्ट किया. डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल लेटर f of x will give स्मॉल लेटर f of x. ठीक है, मतलब कैपिटल लेटर f of x को डिफरेंशिएट करने से ये रिजल्ट मिलेगा. इन दिस वे दिस टू फंक्शंस आर कनेक्टेड टुगेदर. ओके, देन दिस कैपिटल लेटर f of x इज कॉल्ड द इंटीग्रल ऑफ स्मॉल लेटर f of x. कैपिटल लेटर f of x इज कॉल्ड, ये जो कैपिटल लेटर f of x है, कैपिटल लेटर f of x इज कॉल्ड द इंटीग्रल ऑफ f of x, or you can say antiderivative. Now the question is, what is antiderivative? Integration is the reverse or you can say inverse process of differentiation. ठीक है, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से जो रिजल्ट मिलता है, वही रिजल्ट को अगर इंटीग्रेट करोगे तो you will get that function only. That's why we can say that integral is the inverse or reverse process of differentiation. That's why we can say antiderivative. ठीक है, तो इंटीग्रल का और एक नाम है antiderivative. Okay, that there are two functions. These two functions are connected in such a way that differentiation of capital letter f of x is equal to small letter f of x. Then capital letter f of x is called the integral of small letter f of x or antiderivative of small letter f of x. ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट क्या लिखा है देखो, सेकेंड पैरा. the integral f of x is written as, you know this symbol, this is called integration symbol. Yes, integration of small letter f of x dx. ये तो पता है सबको. Yes, and it is, how can we read? And read as the integral of f with respect to x. जैसे कि ddx of f of x का मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ f of x with respect to x. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, इसको कैसे पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रल ऑफ f with respect to x. ठीक है, अभी तुम लोग पूछ सकते हो कि कैपिटल लेटर f of x को ही क्यों इंटीग्रल ऑफ स्मॉल लेटर f of x बोला जाता है. व्हाई नॉट वी कैन से द स्मॉल लेटर f of x इज द इंटीग्रल ऑफ कैपिटल लेटर f of x. You can ask me this type of question also. Okay, why capital letter f of x only called integral of small letter f of x? Why not small letter f of x is called integral of capital letter f of x? You see how these two functions are connected. Differentiation of capital letter f of x equal to small letter f of x, right? अभी इसको इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, ठीक से देखो. ddx of capital letter f of x is small letter f of x.
अभी ये dx को, ये जो dx लिखा, ये dx को अगर जब राइट हैंड साइड में लेके जाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्या होगा देखो, ये dx को राइट हैंड साइड में लेके जाने से लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल लेटर एफ ऑफ एक्स ही बचा रहेगा, और जब ये dx राइट हैंड साइड में चला जाएगा मतलब एफ ऑफ एक्स के साथ आ जाएगा, तो दिस विल बिकम लाइक दिस ओनली, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स। ओके, ये कैपिटल लेटर एफ ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और ये dx स्मॉल लेटर एफ ऑफ एक्स के साथ जब आ जाएगा, दिस डिराइवेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स? डिराइवेटिव और इंटीग्रेशन, डिराइवेटिव, राइट? सो जब ये dx राइट हैंड साइड में आ जाएगा, सो दिस डिराइवेटिव बिकम इंटीग्रल साइन। सो दैट्स व्हाई कैपिटल लेटर f of x is called the integral of small letter f of x, because अभी देखो स्मॉल लेटर f of x को इंटीग्रेट करने से ये रिजल्ट मिलेगा, यस और नॉट? जैसे यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस था, यस और नॉट? डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल लेटर f of x इज स्मॉल लेटर f of x, मतलब यहाँ पे कैपिटल लेटर f of x को डिफरेंशिएट करने से ये रिजल्ट मिला, स्मॉल लेटर f of x। द रिवर्स प्रोसेस मतलब स्मॉल लेटर f of x को जब इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट कैपिटल लेटर f of x, तो मतलब ये कैपिटल लेटर f of x स्मॉल लेटर f of x का रिजल्ट है ना, दैट्स व्हाई कैपिटल लेटर f of x इज कॉल्ड द इंटीग्रल ऑफ स्मॉल लेटर f of x। इंटीग्रल का मतलब है द रिजल्ट ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन। सो व्हिच वन इज द रिजल्ट ऑफ ए फंक्शन? Small letter f of x is the result of capital letter f of x, or capital letter f of x is the result of small letter f of x? Capital letter f of x is the result of small letter f of x, because if you integrate small letter f of x then only you will get capital letter f of x। Clear हुआ? ये dx को सिर्फ right hand side में लेके जाना है, that's it। Automatically this differentiation will become integration sign। That's why integration is the reverse or inverse process of differentiation, इसीलिए तो इसको एंटी डिराइवेटिव भी बोला जाता है, ठीक है? ओके, अभी देखो थर्ड पैरा में आ जाओ। Thus small letter f of x dx equal to, we used to write capital letter f of x plus c। चलो ये तो समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल लेटर f of x कैपिटल लेटर f of x है, बट व्हाई वी नीड टू ऐड प्लस c? Why we need to add this c? C is what? C is the arbitrary constant. C is the arbitrary constant. But why we need to add? मैं क्या बोला था? There are two types of integration. One is indefinite, another one is definite. In case of indefinite integration, always you have to put c. लास्ट में रिजल्ट मिलने के बाद लास्ट स्टेप में c पुट करना है, because indefinite means there is no limit. जब लिमिट नहीं रहता है ये कांस्टेंट वैल्यू पुट करना पड़ता है, इट इज ए पैरामीटर, राइट? बट इन केस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट का मतलब है जब ऐसा लिमिट रहेगा, अपर लिमिट कुछ, लोअर लिमिट कुछ रहेगा, ठीक है? वो बाद में आऊंगा डेफिनिट इंटीग्रेशन में। इन दैट केस नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ सी, नो नीड टू पुट सी, बिकॉज ऑटोमेटिक ये वैल्यू मिल जाएगा। इन केस ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ओनली यू हैव टू पुट प्लस सी, रिजल्ट मिलने के बाद लास्ट स्टेप में, ठीक है? सो यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ गया, देखो सबसे इजी आसान तरीका कैसे याद रखोगे, मीनिंग, सिंबल टर्म्स का मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, f of x इन इंटीग्रेशन ऑफ f of x, मतलब ये इंटीग्रेशन में जो f of x है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इंटीग्रैंड। Now can you tell me the difference between integral and integrand? These two are not same। देखो अभी क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रैंड और इंटीग्रल सेम नहीं है। इंटीग्रल मीन्स व्हाट? इंटीग्रल मीन्स द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब स्मॉल लेटर f of x को इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, दैट रिजल्ट इज कॉल्ड इंटीग्रल। Whereas integrand means what? इंटीग्रैंड का मतलब जो फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, x, ये जो f of x, ये जो x है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस x? x इन f of x, दैट इज, ये सबको पता होगा, वेरिएबल। x इज कॉल्ड द वेरिएबल ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ओके? x इज कॉल्ड द वेरिएबल ऑफ दिस इंटीग्रेशन। नंबर 3,
इंटीग्रेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेट? हेडिंग दिया मैं, चैप्टर का हेडिंग दिया इंटीग्रल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेट? GRATE. इंटीग्रेट मीन्स फाइंड द इंटीग्रल, मतलब रिजल्ट. इंटीग्रेट मीन्स इंटीग्रेट करने से, ये इंटीग्रेट करने से जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड फाइंड द रिजल्ट, फाइंड द इंटीग्रल. ओके, इंटीग्रल मीन्स रिजल्ट ओनली ना. नंबर 4, इंटीग्रेशन. हर वक्त तुम लोग यूज करते हो ये वर्ड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन. नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल. इंटीग्रेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल. जो प्रोसेस यूज करके रिजल्ट निकालता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. ओके, सी द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेट एंड इंटीग्रल. इंटीग्रेशन बहुत सारा मीनिंग है, ठीक है. एंड द लास्ट वन, सी एन इंटीग्रल ऑफ एफ. एन इंटीग्रल ऑफ एफ, यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है f, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटीग्रल ऑफ f? ए फंक्शन कैपिटल लेटर f such that f dash of x is equal to small letter f of x. जो मैं यहाँ पे लिखा देखो, f dash of x, not this one, not this one, this one. A function f such that f dash of x equal to small letter f of x. This one. d by dx of capital letter f of x means what? f dash of x. f dash of x is equal to f of x. वही तो है. So ये है बेसिक इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक से देख लेना. इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग से ठीक से प्रैक्टिस करो तो बाद में फिजिक्स में भी तुम लोगों को आसान होगा. वो डिराइवेशन में भी यूज होता है फिजिक्स का, ठीक है. ठीक से शुरू करो ये इंटीग्रेशन पार्ट.